باجزید جلائر قاسم کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تو اس نے اپنے دستوں کو کوچ کا حکم دے دیا۔ اتنی دیر میں وہ کافی دور نکل چکا تھا، لیکن قاسم گھوڑا اڑاتا ہوا بہت جلد اس سے جا ملا۔ میاں بیوی میں اس وقت بڑا ہنگامہ خیز جھگڑا شروع ہوا جب حاجی برلاس نے شہزوری کی ماں سے یہ کہا کہ سنتی ہو نیک بخت، تم سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ حاجی برلاس کی بیوی خالص گھر گرہست اور قدامت پرست تاتاری عورت تھی۔ سادگی سے بولی کہ حاجی تم مالک اور مختار ہو، جو چاہو کرو، مجھے باہر کی دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن بات باہر کی نہیں، گھر کی ہے، حاجی نے وضاحت کی۔ بیوی نے حیرت سے شوہر کو دیکھا اور پوچھا، گھر کی کون سی بات مجھ سے ڈکی چھپی ہے؟ گھر کی بات ہے تو مجھ پر چھوڑ دو، میں خود ہی نمٹ لوں گی۔ یہ معاملہ تم اکیلے نہیں نمٹا سکتی شہزوری کی ماں۔ حاجی برلاس نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا۔ اسے ہم تم مل کر ہی سلجھائیں گے۔ شہزوری کی ماں کو میاں کا سخت لہجہ ناگوار گزرا۔ وہ بھی برلاس قبیلے کے ایک بڑے سردار کی بیٹی تھی۔ بولی کہ کان کھول کر سن لو حاجی، یہ گھر میرا ہے، یہاں میرا حکم چلے گا، تم اپنا زور باہر دکھایا کرو۔ حاجی برلاس جذبز تو بہت ہوا، لیکن معاملہ ایسا تھا جو بیوی کی مدد کے بغیر حل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، بولا، تم خامخواہ ناراض ہو رہی ہو، میں گھر کے معاملے میں کب دخل دیتا ہوں؟ ہوگا وہی جو تم چاہو گی، پہلے میری بات تو سن لو، کہو۔ شہزادی کی ماں کا منہ پھول گیا، لیکن دل میں اپنی فتح پر خوش ہوئی۔ شہزوری کا رشتہ آیا ہے، حاجی نے بات چھیڑ دی۔ شہزوری کی ماں چونک پڑی، اس نے تیز نظروں سے حاجی برلاس کو یوں گھورا جیسے اس نے کوئی گالی دی ہو، لیکن بولی کچھ نہیں۔ حاجی نے جواب کا انتظار کیا، بیوی خاموش رہی۔ اس کا حوصلہ بڑھا اور جھجکتے ہوئے بولا، امیر خطر نے اپنے بیٹے کے لیے شہزوری کا رشتہ مانگا ہے۔ شہزوری کی ماں کی تیز نظروں میں اور سختی آ گئی، بولی پھر بھی نہیں، گھورتی رہ گئی۔ حاجی برلاس نے اگلا قدم اٹھایا اور تفصیل بتائی، امیر خطر کا قاصد آیا ہوا ہے، میں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ شہزوری کی ماں جوالا مکھی بن کر پھٹ پڑی اور کہا، کہاں کا رشتہ، کس کا رشتہ؟ شہزوری کی شادی تو ہو چکی ہے، اس کی شادی دوبارہ کون کرا سکتا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مقابلے کے لیے بالکل تیار تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید بیوی کی اس تلخ کلامی کی ترکی بترکی جواب دیتا، لیکن یہ موقع نازک تھا۔ حاجی کو تیمور کے مقابلے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے تعاون کی ضرورت تھی، پھر وہ بیوی کو ناراض کیسے کرتا؟ بیوی کے 11 بھائیوں کے عزیز و اقارب، اتنی بڑی فوجی طاقت کو وہ کیسے نظر انداز کر دیتا؟ حاجی برلاس نرم پڑ گیا اور بولا، شہزوری کی ماں، تم میرا مطلب نہیں سمجھی، شادی تو تمہارے ہی ہاتھوں ہوگی۔ میں تو تم سے پوچھنا چاہ رہا تھا، دیکھو نا، تیمور ہمارا دشمن ہو رہا ہے، اس سے آج کل میں لڑائی تو ہونا ہی ہے۔ میں چاہتا تھا اگر امیر خطر اس بہانے ہماری مدد پر آمادہ ہو جائے تو ایک پنتھ دو کاج ہو جائیں گے، شہزوری بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی اور تیمور کے مقابلے کے لیے ایک مضبوط حلیف مل جائے گا۔ شرم کرو شرم حاجی برلاس۔ شہزوری کی ماں شیرنی کی طرح گرجی، اپنی طاقت بڑھانے کے لیے بیٹی کا نیلام کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے حاجی؟ غیر قبیلے میں شادی کرنے کا تمہیں خیال کیسے آ گیا؟ حاجی نے اپنے بچاؤ میں کہا، امیر خطر کا لیسوری خاندان ہمارے قبیلے سے کمتر تو نہیں، ہماری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ شہزوری کی ماں بولی کہ حاجی تمہارا حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے، 3 سال پہلے اسی یسوری قبیلے کا رشتہ شہزوری کے لیے آیا تھا۔ لڑکے کی ماں میری بہن بنی ہوئی تھی، میں نے کتنے جتن کیے، کتنی خوشامد کی تھی، مگر تم ٹس سے مس نہ ہوئے، تم قبیلے کی ناک لے کر بیٹھ گئے۔ دوسرے قبیلے میں لڑکی دینے سے تمہاری اور تمہارے قبیلے والوں کی ناک کٹ رہی تھی، اب تمہیں کیا ہوا؟ کہاں گئی تمہاری ناک؟ میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ لڑکی کا رشتہ ایک ہی بار کیا جاتا ہے، شہزوری جس کی ہو چکی اسی کے گھر جائے گی۔ شہزوری کی ماں آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ خاموش طبیعت تھی، لیکن ایسے لوگوں کا غصہ بڑا قیامت کا اور خوفناک ہوتا ہے۔ حاجی برلاس نے دیکھا گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکل رہا تو خود بھی اکڑ گیا۔ اس نے دھونس دی، شہزوری کی ماں تم بھی گرہ میں باندھ لو، چاہے شہزوری زندگی بھر کنواری بیٹھی رہے، میں اسے قاسم کے ساتھ رخصت نہیں کروں گا، نہ نکاح نہ رخصتی۔ شہزوری پر ابھی ہمارا زور ہے، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ شہزوری کی ماں بھلا کب دبنے والی تھی؟ میں بھی دیکھتی ہوں شہزوری کسی اور کے گھر بیاہ کے کیسے جاتی ہے۔ غضب خدا کا، رشتے کا اعلان خود کیا، تمام قبیلے والوں میں بات پھیل گئی۔ میں تاتاری عورتوں میں نکو نہیں بن سکتی۔ قاسم کے ساتھ نکاح نہ ہوا تو کیا ہوا؟ ہماری زبان نکاح سے کچھ کم ہے؟ اسی زبان کی خاطر تو تاتاری گلا کٹوا دیتے ہیں۔ حاجی برلاس پیر پٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آج میں آپا جائی سے بات کروں گا، وہ مان گئیں تو میں دیکھوں گا تم مجھے کیسے روکتی ہو۔ شہزوری کی ماں نے فوراً کہہ دیا، ہاں ہاں کر لو بات، میں تمہاری آپا جائی سے ڈرتی ہوں؟ کہنے کو تو شہزوری کی ماں کہہ گئی، لیکن آپا جائی کا نام سنتے ہی وہ کانپ گئی تھی۔ آپا جائی سے وہی کیا، قبیلہ برلاس کا کون بشر تھا جو نہ ڈرتا ہو؟ وہ حاجی برلاس کی پھوپھی تھی، عمر 100 سے بھی اوپر،
نہ मुंह में दांत न पेट में आंत। बूढ़ी खूसट कब्र में पैर लटकाए बैठी थी, मगर रोब दाब का ये आलम कि कोई उसके सामने चूं भी न कर सके। चूंडा सफेद, भवें सफेद, कमर झुकी हुई, मगर बुढ़िया लकड़ी टेकती मीलों पैदल चली जाती। उसकी आंखों और कानों पर तो जैसे बुढ़ापा आया ही न था। आवाज ऐसी करारी के पर्दे के पीछे से बोले तो 16 साल की लड़की मालूम हो। आपाजाई बरलास कबीले की मुअम्मर तरीन खातून थी। उस वक्त के तमाम बुजुर्ग तातारी सरदार उनकी गोद में खेले थे। हाजी बरलास की तो आपाजाई ने बेटे की तरह पाला था। जिस तरह हाजी बरलास की माँ उसे जन्म देकर अल्लाह को प्यारी हुई, उसी दिन आपाजाई बेवा हुई। आपाजाई ने हाजी बरलास को गोद लिया था। दरअसल आपाजाई के जोर पर ही सारा कबीला चलता था। जब तैमूर और हाजी बरलास का झगड़ा चला तो कबीले के सब ही सरदार तैमूर को अपना हाकिम बनाना चाहते थे, लेकिन आपाजाई दीवार बनकर तैमूर के सामने आ गई। उसने ऐलान करा दिया कि चचा के होते हुए भतीजे का सरदारी पर कोई हक नहीं। नतीजा ये हुआ कि उम्र रसीदा तमाम सरदार हाजी बरलास के तरफदार हो गए और जवां सरदारों ने तैमूर के झंडे तले आकर दम लिया। इस खींचातानी में कई बाप बेटे एक दूसरे के सामने आ गए। भाई भाई का दुश्मन हो गया। रात को आपाजाई के दरबार में मुकदमा पेश हुआ। हाजी बरलास मुद्दई और उसकी बीवी मुद्दा अलय थी। आपाजाई का खैमा बड़ी खूबसूरती से आरास्ता किया गया था। दोहरे कालीनों का फर्श, रेशमी पर्दे और बड़ी बी की मसनद पर जरनगार झालरें लगी थी। आपाजाई मसनद के सहारे कमर झुकाए इस तरह बैठी थी जैसे कोई शहंशाह बैठता है। कबीले की दो दोशीजाएं उसके पैर और शाने दाब रही थीं। इनमें एक शहजोरी थी। शहजोरी को पता चल गया था कि आज उसका मुकदमा आपाजाई के सामने पेश होगा। वो शाम ही से आपाजाई के खेमे में पहुंच गई। हाजी बरलास ने तैमूर के खिलाफ कत्ल की जो साजिश की थी उसकी खबर आपाजाई को ना होने दी थी। शहजोरी ने आज पैर दबाने के दौरान भांडा फोड़ दिया था और बड़ी बी को अलिफ से ये तक सारी बात बता दी। हाजी बरलास और उसकी बीवी आपाजाई के सामने सर झुकाए बैठे थे। कबीले के कुछ और बुजुर्ग भी खेमे में मौजूद थे। आपाजाई के खेमे में किसी को उस वक्त तक जुबान खोलने की इजाजत न थी जब तक वो खुद किसी को बोलने का हुक्म न दे। आपाजाई ने हाजी बरलास को और उसकी बीवी के साथ उसके पास आने से ये अंदाजा लगा लिया कि मियाँ बीवी में किसी बात पर झगड़ा हुआ है और वो झगड़ा इस कदर बढ़ गया है कि फैसले के लिए वो उसके पास आए हैं। बड़ी देर खामोशी के बाद बड़ी बी बोली कि हाजी बरलास, बीवी से लड़ा ना करो। शहजोरी की माँ बड़ी नेक बच्ची है। हाजी बरलास घबरा गया। आपाजाई ने पहले ही जुमले में शहजोरी की माँ की तरफदारी कर दी थी। उसने गला साफ करते हुए कहा, आपाजाई, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं, मैं आजकल परेशान हूँ। तैमूर नाफरमानी पर कमर बस्ता है। उसने एक बड़ी फौज इकट्ठी कर ली है। आपके हुक्म के खिलाफ वो मेरी सरदारी से अब तक इनकार कर रहा है। उसे सजा देने के लिए मैं दूसरे कबीलों का ताउन हासिल करना चाहता हूँ। हाजी बरलास, बात मुख्तसर करो। आपाजाई बड़े करारे लहजे में बोली, मुझे राम कहानी सुनाने की जरूरत नहीं। हाजी बरलास को पसीना आ गया। उसने इधर उधर देखकर कहा, बात मेरे घर की है। अगर तन्हाई में अर्ज करने की इजाजत हो तो ज्यादा बेहतर होगा। आपाजाई ने खेमे में बैठे हुए लोगों की तरफ कुछ इस अंदाज से देखा कि वो एक एक करके खामोशी से खेमे के बाहर चले गए। शहजोरी भी बाहर निकल गई। कहो। आपाजाई ने हाजी बरलास को सख्ती से हुक्म दिया। हाजी ने कहना शुरू किया, यसूरी कबीले का सरदार अमीर खतर मेरा दोस्त है। बहादुर सवारों का एक मजबूत जत्था उसके साथ है। अमीर खतर की फौजी ताकत तातारी कबीलों में, मतलब की बात करो हाजी। आपाजाई ने उसे फिर टोका। हाजी बरलास पहले ही घबराया हुआ था, अब और ज्यादा घबरा गया। जल्दी जल्दी खुद को संभाला और बोला, अमीर खतर ने शहजोरी का रिश्ता अपने लड़के के लिए मांगा है। तुमने क्या जवाब दिया? आपाजाई ने तेज नजरों से उसे देखते हुए पूछा। हाजी ने डरते डरते कहा, मैंने मंजूर कर लिया है आपाजाई। आपाजाई ने तेजी से पहलू बदला और कड़क कर बोली कि फिर मेरे पास क्या लेने आए हो? हाजी बरलास, तुम हद से बढ़ गए हो। मैंने तुम्हें पाल पोस कर जवान किया, तैमूर के मुकाबले में तुम्हारी हिमायत की। हालांकि तैमूर में एक सरदार की हैसियत से तुमसे ज्यादा गुण मौजूद हैं, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। तुमने तैमूर को अपनी दावत में बुलाकर कत्ल करने की कोशिश की। अगर तैमूर हलाक हो जाता तो बरलास कबीला हमेशा के लिए बदनाम हो जाता। हाजी बरलास पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। उसके पास जवाब ही क्या था? भीगी बिल्ली बना बैठा रहा। आपाजाई बोलते बोलते थक गई थी। उन्होंने 2-3 लंबी सांसें लेकर खुद को संभाला। 1-2 बार खांसी, पहलू बदलने में एक बार मसनद से लुढ़क भी गई, मगर थी बड़ी जीदार। खुद ही संभल कर बैठ गई। क्या तुमने शहजोरी और कासिम के रिश्ते का ऐलान नहीं किया? आपाजाई ने जरा शुरू की। जी हाँ, ऐलान किया था, लेकिन हाजी बरलास ने वजाहत करना चाही, मगर आपाजाई ने डांट दिया। कहने लगी कि सिर्फ इस बात का जवाब दो जो मैं पूछ रही हूँ। हाजी बरलास में हिम्मत नहीं थी कि आपाजाई को टोकता या उनकी मुखालिफत करता। उसकी ताकत आपाजाई की वजह से थी। कबीले के तमाम सरदारों को उन्होंने हाजी का तरफदार बनाया था। हाजी बरलास, आपाजाई ने उसे मुखातिब किया, रिश्ते का ऐलान तुमने किया, फिर गजब ये कि उसकी तस्दीक मुझसे कराई। वो मेरी गलती थी आपाजाई। हाजी बरलास लजाते हुए बोला।
قاسم باغی हो गया, वो कबीले का दुश्मन है। आपाजाई ने फौरन गिरफ्त की। कासिम दुश्मन था तो उसे बच के तैमूर के पास क्यों जाने दिया, कत्ल कर दिया होता। ये भी मेरी गलती थी आपाजाई। बरलास का सर मुजरिम की तरह झुक गया। और मेरी गलती ये है कि मैंने तुम्हें तैमूर पर फौकियत दी। आपाजाई बड़े गुस्से से बोली, हाजी, ये रिश्ता उस वक्त तक नहीं टूट सकता जब तक दोनों में से एक मर नहीं जाता या इनमें से एक इनकार नहीं कर देता। कबीले का यही दस्तूर है और यही रहेगा। मुकदमे का फैसला हो गया। हाजी बरलास की बीवी को एक लफ्ज बोलने की जरूरत न पड़ी। उसका मुकदमा तो खुद आपाजाई लड़ रही थी। हाजी ने शिकस्त के बावजूद हथियार नहीं डाले थे। उसे उम्मीद की हल्की सी किरण दिखाई दी। बोला, आपाजाई, आपने फरमाया है कि दो में से एक इनकार कर दे तो रिश्ता खत्म हो सकता है। आपाजाई ने हैरत से हाजी बरलास को देखा। उनके ख्याल में अब उस बारे में किसी मजीद गुफ्तगू की जरूरत न थी, लेकिन हाजी ने फिर बात छेड़ दी। आपाजाई ने कहा, हाँ कहा था, अगर लड़की या लड़का किसी खास वजह से रिश्ते से इनकार कर दें तो ये मुमकिन है, लेकिन इनकार की कोई दलील और सबूत होना भी जरूरी है। हाजी बरलास का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो आपाजाई की बात भी पूरी तरह ना सुन सका। वो अपनी सोचों में गुम था कि आपाजाई खामोश भी हो गईं और उसे खबर भी ना हुई। आपाजाई खुद ही बोली, हाजी बरलास, तुम सोच रहे हो कासिम इस रिश्ते से इनकार कर देगा। ये गलत है। कासिम को शहजोरी से बेहतर दुल्हन नहीं मिल सकती। वो कभी इनकार नहीं करेगा। हाजी बरलास होश में आ गया और बोला, मैं कासिम पर लानत भेजता हूँ। मेरा ख्याल। हाजी ने चुप होकर कनखियों से बीवी की तरफ देखा। शहजोरी की माँ अब तक खामोश थी। उसने अब भी खामोशी ही इख्तियार किए रखी। हाजी बरलास को जवाब आपाजाई ने दिया, तुम्हारा इशारा शहजोरी की तरफ है, उससे भी पूछ देखो। लेकिन ठहरो, उससे मैं खुद पूछूंगी। तुम्हारे फुसलाने और वरगलाने से वो गलत फैसला भी कर सकती है। आपाजाई ने हाजी बरलास और उसकी बीवी को खेमे से बाहर भेज दिया। शहजोरी को बुलवाया गया। शहजोरी डरती हुई आई। वो बड़ी परेशान थी। उसके ख्याल में फैसला आपाजाई को करना था। उसे क्यों बुलाया गया, यही सोच सोच कर उसे होल उठ रहे थे। शहजोरी सर झुकाए आपाजाई के कदमों में बैठ गई। आपाजाई ने अपना लरसता हाथ शहजोरी के सर पर फेरा। उनके चेहरे की झुर्रियां सिमटती और फैलती महसूस हो रही थीं। शायद वो मुस्कुरा रही थीं। आपाजाई ने मोहब्बत से पूछा कि शहजोरी, तेरे बाप ने कासिम और तेरे रिश्ते का ऐलान किया। मैंने भी इसे पसंद किया। उस दिन मैंने तेरी मर्जी मालूम नहीं की थी, लेकिन अब इसकी जरूरत आन पड़ी है। ना तो मेरी नाराजगी का ख्याल करो और ना ही बरलास से खौफ खाना। मुझे साफ साफ बता, अगर तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं तो मैं इसे खुद खत्म करा दूंगी। तेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। शहजोरी को इस बात का तो ख्याल ही न था। वो अजीब कशमकश में पड़ गई। कासिम से रिश्ता तोड़ने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन बाप की मुखालिफत एक भयानक देव बन गई। अगर वो अपनी पसंद के मुताबिक रिश्ता बरकरार रखती है तो हाजी बरलास उसका जीना अजीरन कर देगा, और अगर रिश्ता तोड़ती है तो उसकी उम्मीदों और आरजुओं का महल रेजा रेजा होता है। आपाजाई बोलते बोलते थक गई थीं। आज उन्हें बेतकान बोलना पड़ा था। शहजोरी से बातें करते वक्त उन पर कुछ ज्यादा ही थकन गालिब आ गई थी। उन्होंने अटक अटक कर और ठहर ठहर कर अपना मकसद बयान किया था। शहजोरी को इससे सोचने का मौका मिल गया। वो अभी सोच रही थी अपने मुताल्लिक, कासिम के मुताल्लिक और हाजी बरलास की इस नई जिद के लिए। आखिर उसकी सोच एक नुक्ते पर आकर जम गई। शहजोरी को ये यकीन था कि आपाजाई एक बार जिस बात का ऐलान कर दें उसको किसी सूरत में बदल नहीं सकती थी। ये उनकी आन और अना का मसला बन जाता था। उन्होंने तैमूर के मुकाबले में हाजी बरलास की हिमायत का ऐलान किया। उन्हें इस ऐलान पर अफसोस था। इसका इजहार भी वो बरमला करती थी, लेकिन वो अपनी कही हुई बात से मुंह नहीं मोड़ती थी। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। इसी नुक्ते में शहजोरी को अपनी कामयाबी दिखाई दी। शहजोरी ने अदब से कहा, आपाजाई, शादी ब्याह के मामलात में तातारी लड़कियां अपने बुजुर्गों के फैसले को तस्लीम करती हैं। कासिम के लिए मेरे बाप ने ऐलान कर दिया, आपने उसकी मंजूरी दे दी। ये ऐलान और मंजूरी मेरे लिए आसमानी हुक्म का दर्जा रखता है। मैं बाप की मुखालिफत और आपके हुक्म से सरताबी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप और मेरे अब्बा जान किसी मसलहत की बिना पर चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं तो मुझे आप लोगों के हुक्म से इनकार नहीं होगा। मैं उसे भी चुपचाप तस्लीम करके इनकार कर दूंगी, लेकिन मेरा ये इनकार जुबान से नहीं खंजर से होगा। मैं अपना खंजर अपने दिल में उतार कर हमेशा के लिए अपनी जबान बंद कर लूंगी, ताकि न मैं अपनी हमजोलियों में शर्मिंदा हूँ और न दूसरे तातारी कबाइल हमारे बरलास कबीले को ये ताना दे सकें कि बरलास जबान के झूठे और कौल के फिर जाने वाले हैं। शहजोरी की बातों का एक एक लफ्ज तीर बनकर आपाजाई के दिल में उतर गया। उन्हें शहजोरी का दिल दुखाने का बड़ा गम हो। उन्होंने कांपते हुए हाथों से शहजोरी का सर अपनी गोद में रख लिया और भराई हुई आवाज में बोली कि शहजोरी, मुझे माफ कर दे। मैंने नाहक तेरा दिल दुखाया। मुझे क्या मालूम था कि बरलास में ऐसी लड़कियां भी मौजूद हैं जो बुजुर्गों की बातों पर अपनी जान तक गंवा सकती हैं। तू इत्मीनान रख, कासिम के सिवा और कोई तेरा दुल्हा नहीं बनेगा।
शहजोरी की आंखों में मसरत के आंसू जगमगा उठे। आपाजाई ने हाजी बरलास को बुलाकर अपना आखिरी फैसला सुना दिया। हाजी, तेरी बेटी का हकदार कासिम है, तुझे ये रिश्ता तोड़ना है तो जाकर मैदान जंग में कासिम को कत्ल कर दे। हाजी बरलास को यही खदशा था। अगर उसे शहजोरी को समझाने का मौका मिल जाता तो शायद वो मान जाती, लेकिन आपाजाई ने उसे ये मौका ही न दिया। हाजी शिकस्त खुर्दा सिपाही की तरह मुंह लटकाए खेमे से निकलने लगा तो उसके कानों में आपाजाई की आवाज आई। बदबख्त और बेगैरत है वो बाप जो अपनी सरदारी के लिए बेटी का सौदा करे। हाजी बरलास खून के घूंट पीता हुआ खेमे से बाहर निकल गया। बायजीद जलायर जिस वक्त कासिम और अपने 500 सवारों के साथ शहर सब्ज की सरहद पर पहुंचा तो उसने तैमूर के सरहदी दस्तों को मुकाबले के लिए तैयार पाया। तैमूर के सवारों ने तरकश से तीर निकाले और कमानें सीधी कर लीं। कासिम ने फौरन सफेद कपड़ा तलवार पर बांधकर फजा में बुलंद कर दिया। बायजीद ने भी यही अमल किया। तैमूर के सवारों की कमानें नीची हो गईं। तीर तरकश में वापस चले गए। बायजीद जलायर ने अपने सवारों को वहीं छोड़ा और कासिम के साथ सरहद पर पहुंचा। कासिम को तैमूरी सवार नजर आ रहे थे। कासिम और बायजीद ने अपनी तलवारें मुहाफिजों के हवाले कर दी और तैमूर से मिलने की ख्वाहिश की। मुहाफिज उन्हें अपनी हिफाजत में लेकर कसरे सफेद की तरफ चल पड़े। कसरे सफेद के एक हिस्से में तैमूर ने अपनी रिहाइश के लिए एक खूबसूरत हवेली तामीर कराई थी। तैमूर अपनी हवेली में बैठा सरदारों से सलाह मशवरे में मसरूफ था। उसी वक्त उसे इत्तला दी गई कि कासिम और खरजंद का सरदार बायजीद जलायर मुलाकात के लिए आए हैं। तैमूर एक फरेब खा चुका था। वो सोच में पड़ गया। कासिम का आना तो उसकी समझ में आता था। वो जानता था कि कासिम एक भोला भाला जवान है, उसका इस साजिश से कोई ताल्लुक नहीं। उसे धोखे से बुलाने को भेजा गया था, लेकिन बायजीद जलायर का आना उसकी समझ में न आया। तैमूर को यकीन था कि बायजीद जलायर इस साजिश में बराबर का शरीक है, फिर वो शहर सब्ज क्यों आया, उसके इरादे क्या हैं? इंसान में मेहमान नवाजी का जज्बा हो तो वो दरवाजे पर आए हुए दुश्मन को भी खुशामदीद कहने के लिए मजबूर होता है। तैमूर बड़ा मेहमान नवाज था। उसके दिल ने गवारा न किया कि बायजीद जलायर से मिलने से इनकार कर दे। तैमूर ने इत्तला देने वाले को हुक्म दिया कि मेहमानों को इज्जत से अंदर लाया जाए। बायजीद जलायर और कासिम लाए गए। दोनों की नजरें नदामत से झुकी हुई थीं। उनके जिस्म पर कोई असलहा नहीं था। तैमूर ने उनके चेहरों से दिलों की कैफियत मालूम करने की कोशिश की, फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। मुअज़्ज़ज़ सरदार, नजरें उठाइए। तैमूर ने बायजीद को मुखातिब किया। बायजीद जलायर ने सर ऊपर उठाया और तैमूर से नजरें मिलाईं। तैमूर ने अपने हाथ फैला दिए। बायजीद भी हाथ फैलाकर आगे बढ़ा। दोनों गले मिल गए। कासिम अब तक सर झुकाए खड़ा था। तैमूर बोला, कासिम, तुम काबिले रहम हो, मैं बगैर कुछ पूछे तुम्हें माफ करता हूँ। कासिम ने हैरान हैरान नजरों से तैमूर को देखा। तैमूर अब भी मुस्कुरा रहा था। सरदार तैमूर, आप कितने अजीम हैं। कासिम के जिस्म में मुसर्रत की बिजलियां सी दौड़ गईं। तैमूर ने उसे कोई जवाब न दिया, सिर्फ साथ आने का इशारा किया। कासिम साथ हो लिया। तैमूर बायजीद जलायर का हाथ पकड़े हुए अपनी मसनद के पास पहुंचा और उसे अपने बराबर बिठा लिया। कासिम उसके सामने बैठ गया। तैमूर ने ठहरे हुए लहजे में कहा, ए हाकिम खजंद, मुझे यकीन नहीं आता कि आप भी इस साजिश में शरीक थे। बायजीद जलायर की आंखें शर्म से ऊपर न उठती थीं। वो बड़े कर्ब से बोला, सरदार तैमूर, ये तुम्हारी आला ज़र्फी है कि तुम अपने दुश्मन की गलती पर पर्दा डाल रहे हो। तातारियों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को मेहमान बनाकर कत्ल किया जाए। मैं हाजी बरलास की नफरत अंगेज साजिश में बराबर का शरीक हूँ। मेरा ज़मीर मुझे कचोके दे रहा है। मैं इकबाले जुर्म करके सजा का मुंतजर हूँ। मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। तैमूर ने बायजीद के कांधे पर हाथ रखा। मुअज़्ज़ज़ सरदार, एतराफ़े गुनाह के बाद आधा बोझ हल्का हो जाता है। मैं खुदा को हाजिर व नाज़िर जानकर आपको माफ करता हूँ। आप मेरे मेहमान हैं। आपकी अफसरदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बायजीद जलायर जज्बात से बेकाबू हो गया। वो दोबारा तैमूर के गले लगकर बोला, कासिम ने सच कहा, तुम बहुत अजीम हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे और हाजी के झगड़े में आइंदा कभी नहीं पड़ूंगा। मैंने तुम्हारे झगड़े में पड़कर सख्त गलती की, मुझे जिल्लत उठाना पड़ी। ऐसी बातें न कीजिए सरदार, तैमूर ने उसे तसल्ली दी। बायजीद जलायर तैमूर से उम्र में काफी बड़ा था। तैमूर को उसकी बुजुर्गी का एहतराम था। वो बड़ी तहजीब से गुफ्तगू कर रहा था। तैमूर ने गुलाम को मशरूब लाने का हुक्म दिया। तैमूर ने पूछा, सरदार, आपके सवार कहाँ हैं? बायजीद जलायर की नदामत और शर्मिंदगी तैमूर के हुस्न सुलूक की वजह से दूर हो गई। उसने कहा, जुर्म मैंने किया था। मैं अकेला ही माफी मांगने तुम्हारे पास चला आया। मेरे सवार शहर सब्ज के पास मौजूद हैं। मैं उनसे कह आया हूँ कि मेरे मरने की खबर मिले तो खुशी खुशी खजंद वापस चले जाएं और वहाँ ऐलान कर दें कि बायजीद ने जो गुनाह किया था उसे उसकी सजा मिल गई है। तैमूर बहुत मुतासिर हुआ। उसने हुक्म दिया, बायजीद जलायर के सवारों को शहर में बुलाया जाए। वो हमारे मेहमान हैं।
بایزید جلائر کو بڑی عزت سے حویلی میں ٹھہرایا گیا۔ شام کو شاندار ضیافت ہوئی۔ تاتاریوں کا خاص کھانا گھوڑوں کے پٹھوں کے کباب اور شہد چپڑی جو کی روٹی تھی۔ اسی سے مہمان کی تواضع کی گئی۔ قصر سفید کی اس حویلی میں رات بھر جشن جیسا سما رہا۔ صبح دم تیمور نے بایزید جلائر کو رخصت کیا۔ دونوں کے دل صاف ہو گئے۔ آئندہ کے لیے تعاون کے عہد و پیمان ہوئے۔ بایزید نے وعدہ کیا کہ وہ نہ تو خود اس کے اور حاجی برلاس کے جھگڑے میں دخل دے گا اور نہ دوسرے تاتاری سرداروں کو اس میں فریق بننے دے گا۔ حاکم خجند کے جانے کے بعد تیمور نے قاسم کی خوب خبر لی، لیکن ہنس ہنس کر۔ اسے قاسم کی سادہ لوحی پر ہنسی آتی تھی۔